ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج میں کافی تھکا ہوا تھا کیونکہ آج بھی مجھے کوئی جاب نہیں ملی تھی۔ ابھی پانی پینے لگا تھا جب اس کی کال آئی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنے والی ہے، اسی وجہ سے میں کال نہیں اٹھائی، لیکن اس کی کالز پر کالز آئی۔ امی نے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں اس کی کال کیوں نہیں اٹھا رہا ہوں۔ امی کو میں کیا جواب دیتا، میں اسے کافی محبت کرتا تھا، لیکن وہ میری محبت کے بیچ میں ایک ایسی چیز لے کر آ گئی تھی جو شاید میرے نصیب میں نہیں تھی۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، ہم نے بچپن ساتھ گزارا تھا، جس کے بعد وہ کراچی چلے گئے تھے۔ ہم لوگ کافی فون پر باتیں کرتے تھے۔ امی جب بھی اس کا ذکر کرتی تھی، میرے بدلے ہوئے رنگ کو دیکھ کر وہ جان جاتی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے کچھ الگ ہے۔ میری خاموشی کو بالکل اچھی طرح سمجھتی تھی، اس لیے ایک دن انہوں نے کراچی جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ اس بات کے کام کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ جب 3 دن بعد امی واپس آئیں تو ان کا چہرہ کافی اترا ہوا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی۔ امی سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ گئی تو کافی خوشی خوشی تھی، لیکن واپس آ کر ان کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ اس پر امی نے مجھے بتایا کہ وہ میرا رشتہ لے کر گئی تھی، پر خالہ نے کچھ وقت مانگا تھا۔ پھر میں نے یہ سن کر امی کو سمجھایا کہ خالہ نے اگر وقت مانگا ہے تو یہ ان کا حق ہے، اس وجہ سے وہ اپنا موڈ خراب نہ کریں۔ پر رات کو انشال کی وہ کال آئی تو اس کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کتنی سرد مہری سے وہ ساری باتیں کرتی گئیں جو کہ تیز تیر کی طرح میرے دل کو چیر رہی تھی، لیکن وہ کہتی گئیں کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کوئی ڈھنگ کی جاب تلاش کروں تاکہ اس قابل ہو جاؤں۔ میرا شروع سے یہ خواب تھا کہ میں رپورٹر بنوں، کیونکہ میرا مرحوم ابا کا خواب تھا۔ ان کی وفات کے بعد میں نے محنت کی اور اب اچھا رپورٹر تو بن گیا تھا، پر مجھے کوئی بھی جاب نہیں ملی تھی۔ انشال کی بات سن کر امی نے بھی یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی جاب دیکھنی ہوگی تاکہ اس سے شادی کر سکوں۔ میں نے انشال کو کہہ دیا کہ وہ فکر نہ کرے، میں ایسا ہر کام کروں گا جس سے میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے۔ میں صبح صبح جاب پر نکل جاتا تھا، روز کی طرح پڑوسی کی بیٹی میرے ساتھ جانے کے لیے ضد کرتی تھی۔ اس کی عمر 15 سال کی تھی، لیکن وہ دکھنے میں کم عمر لگتی تھی۔ وہ روز ضد کرتی تھی کہ میں اسے جاتے ہوئے پرانے پل والی سائڈ پر چھوڑ دوں۔ میں اس کی ضد کی وجہ سے مان جاتا تھا۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، میں نے اس کے گھر کے سب کام سنبھالے ہوئے تھے، کیونکہ امی ہی مجھ سے کہتی تھی کہ ان کی مدد کرنے سے اجر ملے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی کس کام کے لیے جاتی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا کام نہیں ہے۔ اس کو چھوڑنے کے بعد جاب تلاش کرتا تھا، جب ہی کمپنی میں انٹرویو دیتا تھا۔ میری پڑھائی کافی اچھی تھی، میرے گریڈز بھی شاندار تھے، لیکن سب یہ کہتے تھے کہ پہلے میں کہیں جاب کروں جب سیلری کے بغیر ہوگی، اس کے بعد مجھے تجربہ آ جائے گا، اس تجربے کی بنیاد پر مجھے جاب مل سکتی ہے۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہوتا تھا کیونکہ مجھے جلد ہی جاب چاہیے تھی۔ میں واپس گھر کو لوٹ آتا تھا۔ کچھ دن بعد اچانک انشال کی کال آئی تو میں نے اس کی کال نہ اٹھائی۔ روز اس کا ایک سوال ہوتا تھا کہ مجھے جاب ملی ہے یا نہیں۔ میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ آج تو میں مایوس ہو گیا تھا۔ دوسری طرف انشال نے جاب کی بات نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو کوئی اور بات کر رہی تھی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا کافی اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا۔ یہ سن کر میں نے انشال کو کہہ دیا تھا وہ کیسے ہاں کر سکتی ہے، جبکہ وہ کہنے لگی کہ لڑکا کافی اچھا کماتا ہے، اس لیے انہیں انکار کرنے کا جواز نہیں بنتا تھا۔ میں نے انشال کو کہا کہ وہ مجھے 1 ہفتے کا وقت دے تو 1 ہفتے بعد ہی میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ انشال نے میری بات مان لی تھی۔ میں بھی خوش ہو گیا تھا کہ کم از کم مجھے کچھ وقت تو ملا۔ جب میں اپنے دن رات ایک کر دیے تھے کسی طریقے سے جاب مل جائے۔ ایک کمپنی میں جیسے گئی تو کمپنی والے نے مجھے کہا کہ میں ایسا کیس تلاش کروں جس کی رپورٹ کافی اچھی بنے، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میری جاب پکی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا اور شکر کیا کہ کم از کم ایک امید کی کرن تو نظر آئی۔ اب میں ایک ایسے کیس کی تلاش میں تھا جس کی وجہ سے جاب کے چکر اب ختم ہو چکے تھے۔ پڑوس کی لڑکی کی جب یہ دیکھا کہ اب میں رات کو نہیں نکلتا تو وہ شوق ہو گئی تھی۔ میرے گھر آ کر وجہ پوچھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ایک آخری مرتبہ میں اسے پرانے پل کی جانب چھوڑ آؤں، اس کے بعد وہ مجھ سے کسی بھی چیز کی ضد نہیں کرے گی۔ یہ سن کر میں شوق ہو گیا تھا اور سوچا کہ یہ آخری دفعہ اس کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ بھی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اگلے دن رات کو ہی میں اس کے گھر کے سامنے اپنی بائک لے کر آ گیا تھا۔
कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो इसके हाथ में एक कपड़े की पोटली थी, जिसे देखकर मुझे कुछ धचका तो लगा, लेकिन मैं हर बार की तरह इस बार अपने काम से काम रखते हुए बाइक स्टार्ट कर चुका था। पुराने पुल पे इसको छोड़कर वापस घर चला गया। इंशाल को बताया कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिलने वाली है, अब एक हफ्ता ख़त्म होने दो। मैं 2 दिन रह गए थे। इन 2 दिनों में मुझे अच्छी सी जॉब अगर ना मिलती तो इंशाल ने इस रिश्ते को हाँ कर देनी थी। इस चीज़ का डर मुझे हर बार होता था, मैं काफ़ी डर जाता था। रात का आखिरी पहर था जब हमारे घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। अम्मी भी घबरा गई थी कि अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन हो सकता था। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। नींद से उठकर मैं बाहर गया तो सामने पड़ोस वाली बाजी रो रही थी। मुझे देखते ही मुझे गालियां देने लगी थी कि इन्हें मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने इनकी इज्जत खराब की। ये लफ्ज़ सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अम्मी ने भी इसे कहा कि वो होश करे, इनका बेटा हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। जब वो अपनी बेटी का कहने लगी कि रात को वो मेरे साथ बाहर गई थी जबकि अब तक वापस नहीं आई, ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने बाजी को बताया कि मैं मानता हूँ कि वो मेरे साथ गई थी और कल रात भी मेरे साथ ही गई थी। मैं इसे पुराने पुल छोड़कर आया था जिधर वो रोज जाती थी, लेकिन इसके बाद मैं अपने काम पर चला जाता था और मुझे नहीं पता कि इसके बाद वो वापस कैसे आती है। बाजी फिर से रोने लगी थी, अपनी बेटी को याद करने लगी थी। अचानक इनका फोन बजा। जब दूसरी तरफ से आवाज सुनकर वो हैरान हुई थी। वो बहुत रोने लगी थी और कहने लगी थी कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने इनसे पूछा तो कहने लगी कि इसने अपने क्लास फेलो के साथ भागकर शादी कर ली है, जिसे रोज ही मैसेज करता था, और अब वो शहर से बाहर निकलने वाली हैं। मैंने ये खबर सुनी तो शौक हो गया था कि इतनी कम उम्र में इनकी बेटी ने इतना बड़ा और इतना भयानक कदम उठाया है। बाजी कहने लगी कि इनकी बेटी ऐसी नहीं थी, जरूर इस लड़के ने इसे वर्गलाया है, वरना इनकी बेटी बहुत मासूम थी। इनके कहने पर मैंने हर तरफ ऐलान कर दिया ताकि वो लड़का इस शहर से बाहर ना जाए। बाजी के सारे रिश्तेदार इन दोनों को तलाश करने लगे ताकि लड़की की इज्जत बच जाए। मैं भी इनके साथ मिलकर तलाश कर रहा था। इस चीज से मेरी जान छूट जाए। मैं बाहर निकला हुआ था जब इंशाल की मुझे कॉल आई। वो मुझसे पूछने लगी कि मैं कहाँ हूँ। ये सुनकर मैंने इससे 0 से लेकर एंड तक सारी बात बताई। वो भी परेशान हो गई, लेकिन अचानक कहने लगी कि इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है, मुझे जॉब मिल सकती है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि ऐसा करने से अगर मेरी जॉब फिक्स हो जाए तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने इसकी बात मान ली और लड़का लड़की दोनों को तलाश करने में अब और मेहनत करने लगा। मैं पुराने पुल के साथ बने एक कदीम अस्पताल आ गया जो कि गैर कानूनी काम की वजह से सील हो गया था। इधर अब कोई नहीं आता था, लेकिन फिर यह अस्पताल खुला था। मुझे यही लगता था कि शायद वो दोनों यहाँ रुकेंगे क्योंकि यह अस्पताल पहले कभी नहीं खुला था। यही सोचकर मैं अंदर चला गया। अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ था, इस वजह से मुझे अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करनी पड़ी। अस्पताल की सफाई देखकर मुझे लगने लगा था कि इस जगह कोई भी नहीं आया क्योंकि इस जगह जाले थे। अचानक मेरी नज़र एक रूम की तरफ गई जिधर से काफ़ी हल्की आवाज़ आ रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि वो हल्का सा दरवाज़ा खुला। अचानक ही अपनी आंखों से वो सब देखकर मैं हैरान हो गया था क्योंकि इधर तो शहर के काफ़ी सारे सीनियर डॉक्टर मौजूद थे। मुझे वहाँ से काफ़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैं हैरान हो गया कि ये सब इधर क्या कर रहे हैं क्योंकि ये अस्पताल तो काफ़ी देर से बंद है। अचानक ही मेरे ज़हन में ख्याल आया क्योंकि मैं ये खबर इस कंपनी के सीईओ को दे दूं और इसकी रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी बन सकती है जिससे मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैंने बाहर भागना शुरू कर दिया। इन दुल्हन दूल्हे को भूल गया। मैंने जल्दी से इंशाल को कॉल की से खुशखबरी सुनाई कि कल सुबह मेरी ज़िंदगी की एक बहुत अच्छी सुबह होगी और मुझे कल नई जॉब और अच्छी जॉब मिलेगी। इंशाल काफ़ी खुश हो गई थी। अगले दिन मैं कंपनी गया और इन्हें खबर दी कि कैसे वो सारी सीनियर डॉक्टर इस अस्पताल में गैर कानूनी काम कर रहे हैं और किसी को भी खबर नहीं। इस कंपनी के मालिक ने खबर सुनी तो काफ़ी मुतासिर हुआ और जल्दी से इस चीज़ की रिपोर्ट तैयार करवाई। मैंने 2 मिनट में वो रिपोर्ट तैयार कर दी थी क्योंकि ये काम मेरे लिए बहुत आसान था कि वो भी शौक हो गए थे। इन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी जॉब कर दी थी और मेरी सैलरी भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी जल्दी बदल जाएगी, लेकिन ये सच था। मुझे अब कहीं ना कहीं अपनी किस्मत पर भरोसा होने लगा था कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं समझता था। मैं घर जाकर सबको बताया तो अब सब लोग शौक हो गए थे। इंशाल का तो ये देखकर खुशी का कोई ठिकाना ना था। इसे खुश देखकर मैं भी खुश था। अब मेरी जॉब शुरू हो गई थी। मैं रोज़ ही जॉब करने जाता था। 1 माह गुजर गया था। मेरी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल हो गई थी।
एक माह बाद अचानक ही हमारे घर चिल्लाने की आवाज आई। वो तो पड़ोस वाली बाजी थी जो अपनी बेटी के इस अमल के बाद से बिल्कुल चुप हो गई थी, जैसे इस घर में कोई भी नहीं था। और अब अचानक से इनकी आवाज सुनकर मुझे काफी शौक लगा था। मैंने अम्मी से वजह पूछी कि ऐसा क्या हुआ जो बाजी काफी चिल्ला रही हैं। अम्मी ने बताया कि इनकी बेटी वापस तो आई है, पर वो इस लड़के की निशानी के साथ वापस आई है। इसकी माँ इज्जत की वजह से इसे अपने पास रख चुकी है, क्योंकि वो उम्मीद से है। इकरा ये सब सुनकर मोहल्ले वालों ने बातें बनानी थी। मुझे काफी हैरानी हुई थी। मैं जान गया था भागकर शादी करने वालों का अंजाम आखिर यही होता है। इस लड़की पर मुझे काफी तरस आया। इसका कोई कसूर भी नहीं था। मेरी शादी इंशाल के साथ एक माह बाद फिक्स हो गई थी। मैं भी ये चाहता था कि जल्दी से जल्दी मेरी इसके साथ शादी हो जाए और वो मेरी जिंदगी में आ जाए। एक माह में शादी रख दी गई। अंशाल भी अब मेरे साथ बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी खुशी को नजर लग जाएगी, क्योंकि ये सब इतना सीधा कैसे हो सकता था। जिंदगी जितनी उलझी हुई थी इतनी वो सेट हो चुकी थी, पर जिस चीज का डर था वही होने वाला था। मेरी जिंदगी निकाह के ऐन 10 मिनट पहले बर्बाद हो गई थी। जब मेरा मोबाइल इंशाल के पास था और इसने वो कॉल सुनी तो शॉक हो गई थी। इसने अपना निकाह वाला दुपट्टा भी दूर उछाल दिया था कि अब ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। मैं हैरान था कि ऐसा क्या हुआ है जो इंशाल ऐसी बात कर रही है, पर वो बाहर निकल गई थी और अपनी अम्मी को भी इसने कह दिया था कि ये शादी अब नहीं हो सकती। इसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। जब वो कहने लगी कि मेरी जॉब जिस वजह से लगी थी वो वजह झूठ की बुनियाद पर थी, इसलिए अब ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपनी जॉब खो दी है, वो दोनों ही कह कर चली गईं। जबकि मैं ये सुनकर साकित हो गया। सारा खुदी का माहौल एकदम से खामोशी में बदल गया। ये देखकर अम्मी भी परेशान थी। मैंने इंशाल को बताया कि मेरी बात पर यकीन करे, पर वो कहने लगी कि मेरे बॉस का फ़ोन था और जो केस मैंने पेश किया था वो केस झूठा था। डॉक्टर वहां पर अपना काम कर रहे थे। ये सुनकर मैं जान गया था कि क्या हुआ था। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी, पर अब मैं कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं टूट चुका था। मुकम्मल तब टूटा था जब ये सुना कि इंशाल ने एक रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मैं काफ़ी हैरान हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता था, पर अब ये सच था। इसकी एक जगह शादी हो गई थी। मेरा दिल टूट चुका था। अम्मी भी अब पड़ोस के घर चली गई थी। बाजी जी का बेटी का बच्चा हुआ था। बाजी की तबीयत नहीं ठीक थी। अम्मी भी इनकी देखभाल करती थी। मैं ज़हनी दबाव का शिकार हो गया था। इंशाल अपने शौहर के साथ काफ़ी खुश थी। अम्मी ये कहती थी कि मैं इसे भूल जाऊं, पर इसका धोखा मैं कैसे भूल जाता। इसने मेरे लिए इतना भी ना सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ। इसने मेरी एक बात ना सुनी और इतनी जल्दी अगला फैसला ले लिया। अम्मी ये कहती थी कि जो किसी के साथ बुरा करता है इसके साथ भी बुरा होता है, लेकिन अंशाल तो काफ़ी खुश थी। इस मामले में अम्मी की बात गलत साबित हो गई थी। मुझे बहुत दुख था। अल्लाह पाक इंसाफ करता है। मैं जानता था कि इस बार भी इंसाफ होगा। देर तो आए तो क्या हुआ। अजीब बात ये थी कि मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली थी। ये चीज़ मुझे और भी परेशान कर रही थी। मैं ज़हनी दबाव में चला गया था। अम्मी का सारा दिन इस बच्चे के साथ गुजरता था। इस लड़की की भी ये हालत थी तो भी इस लड़के का सोचती थी जिसने इसे छोड़ दिया था। अम्मी मुझे इसकी मिसालें देती थी कि इसके साथ इतना बुरा हुआ है। मुझे तो शुक्र करना चाहिए कि मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि अगर शादी के बाद मुझे इसने छोड़ दिया होता तो ये बहुत बुरी बात होनी थी। मैं भी इस लड़की पर अब तरस खाने लगा था। अगर मालूम होता कि इस वजह से इस पुराने पल जाती हैं तो तब शायद मैं कभी भी इसे वहाँ लेकर ना जाता। ये लड़की झूठी थी और इसे तो इस सब में फंसाया गया था। इसने बस अपनी अम्मी पर यकीन नहीं किया था। इसकी ये गलती थी। अम्मी मुझे कहती थी कि मैं अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ जाऊं। इनकी इस बात का मतलब मैं जानता था। मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया था कि फिलहाल मेरा आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं इस तरह ठीक हूँ। मैंने एक छोटी सी जॉब शुरू कर दी थी। अचानक ही एक दिन अम्मी काफ़ी परेशान लग रही थी। मैंने अम्मी से पूछना चाहा। जब वो कहने लगी कि वो मुझे नहीं बता सकती, मैं जज्बात में आकर कोई गलत फैसला न कर लूं। अम्मी की बात सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगता था कि भले ऐसी क्या बात है जो मुझसे जुड़ी है। मैंने सुना तो शौक हो गया, क्योंकि अम्मी ने बताया कि इंशाल वापस अपने घर आ गई है और इसकी शादी टूट गई है। मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, पर अम्मी मुझसे ये बात क्यों छुपा रही थी इस बात का मुझे पता न चला। अम्मी से पूछा तो वो कहने लगी कि इन्हें डर था कि कहीं मैं अब इंशाल से शादी न कर लूं। इनकी बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि मैं जान गया था कि इंशाल को मुझसे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसे तो सिर्फ दौलत चाहिए थी, जबकि वो भूल गई थी कि दौलत औरत के नसीब से होती है। मैंने अम्मी को यकीन दिलाया कि अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बल्कि अब तो वहीं पर शादी करूंगा जिधर अम्मी मुझसे करने को कहेंगी। मैंने ठान लिया था। अम्मी मेरी इस बात पर काफ़ी खुश हो गई।
इन्हें भी अब तसल्ली हो गई थी। 2 साल गुजर गए, वो लड़की अब कभी कभार अम्मी के पास आती थी। मैंने ये बात नोट की थी कि वो पहले जैसी नहीं रही, बल्कि काफ़ी बदल गई थी। अब वो काफ़ी सीरियस हो गई थी। इसका बेटा भी साथ होता था, जो कि सीधा मेरे रूम में आ जाता था। मैंने इस दिन चॉकलेट दी तो वो काफ़ी खुश हुआ, लेकिन अब वो रोज़ ही मेरे रूम में आ जाता था और ये सोचता था कि इसे दोबारा से चॉकलेट मिलेगी। ये सोचकर मैंने इकट्ठी चॉकलेट खरीद ली ताकि मैं इसे रोज़ दिया करूं। वो भी खुश हो जाता था। अम्मी ये सब देखकर काफ़ी खुश हो जाती थी कि मुझे इस बच्चे से प्यार था। अम्मी ने मुझे बताया कि इस लड़की को अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं है, क्योंकि इस लड़के की वजह से मुझे ये देखकर अफसोस हुआ। इसमें इस नन्ही सी जान का क्या कसूर था, लेकिन वो लड़की सच में अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसे हर वक्त कोसती रहती थी, जिस वजह से वो 2 साल का बच्चा काफ़ी उदास हो गया था। एक दिन अम्मी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी कि इन्होंने मेरे लिए एक लड़की को चुना है जो मेरे साथ मेरे बच्चे काफ़ी जचेगी और अच्छी साबित होगी। मुझे इस लड़की को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अम्मी को कह दिया कि इन्हें जो सही लगे वही करें। अम्मी ने मेरा रवैया देखा तो खुद मेरी शादी इस लड़की के साथ फिक्स कर दी। लेकिन जैसे ही शादी की तारीख फिक्स हुई तो मुझे एक जॉब की ऑफर आ गई। अम्मी तो खुशी से उनका बुरा हाल था। अभी इस लड़के ने कदम भी नहीं इसके पड़े थे कि मेरी किस्मत मेहरबान हो गई। अम्मी को खुश देखकर काफी दिन बाद मैं मुस्कुराया। अम्मी शादी की तैयारियां करने लगी, साथ ही वो इस लड़की को भी लेकर जाती थी और बाजी भी अपनी बेटी और अम्मी के साथ शादी की तैयारियां करने लगी। मुझे अल्फी अच्छा लगता था। मैं मेहंदी वाले दिन वो लड़की काफी अच्छा तैयार होती थी। इस बच्चे को मेरा शरबाला बनाया गया था, जब मुझे बहुत अजीब लगता था। अम्मी कहने लगी कि अब तो बच्चा मेरा भी बच्चा है। इस बात पर मुझे हैरत का धचका लगा कि मेरी शादी इस लड़के से होने जा रही थी, पर अगले दिन ही शादी थी। अब क्या हो सकता था। अम्मी की खुशी अब मेरे लिए ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए मैंने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। शादी के बाद मेरा इस बच्चे के साथ काफी अच्छा लगाव हो गया। मैं इसे ये था कि अब वही प्यार दूं जिसका वो हकदार है। एक दिन अचानक मुझे कॉल आई। मैंने उठाई तो पता चला कि वो केस जो कि डॉक्टर पर था वो सही साबित हुआ। इस वजह से मेरी वाली जॉब दोबारा से बहाल हुई और ये सब में शौक हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ख्वाब था, पर मैंने बॉस को इनकार कर दिया। मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ। बॉस से सुना तो मुझे दोहरी सैलरी की ऑफर की। ये सुनकर मैं अम्मी से बात की। अम्मी ने काफी खुशी का इजहार किया और कह दिया कि मैं वहीं जॉब करूँ। मैंने बॉस को हाँ कर दी, लेकिन अपनी पिछली जॉब भी नहीं छोड़ी थी। मैं इस लड़की का दिल ही दिल से शुक्रगुजार था जिसने मेरी जिंदगी संवार दी थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।